ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू प्रबलीन कॉज वर्ल्ड। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਫॉर एग्जांपल ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, anything related to the vocabulary, so this video is going to help you a lot because the words ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। In fact, if you're going for some kind of interview or you're going or preparing, मतलब तुम समझ गए जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो तुम कुछ भी है ना अपनी राइटिंग सैक्शन इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो, दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकॉज ये जो मैं वर्ड्स इंक्लूड करे वो बहुत ज़्यादा इंप्रैसिव ने। तुम उन्होंने मतलब आम भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे, जस्ट इन केस तुम बस अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी थोड़ा जा एनरिच करना है विद सम कूल एंड स्टाइलिश वर्ड्स, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास विद इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब थोड़ा पता ही होगा, मतलब कि जोश नाल, ठीक है। इफ यू विल पे हीट नो, ये की होंगे पे हीट? देखो मैं थोड़ा ये भी दो वर्ड याद करवा देने ने। पे हीट मतलब कि पे अटेंशन, ठीक है। पे हीट यानी कि इफ यू विल पे अटेंशन यानी कि जो तुम ध्यान नाल सुनोगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेमोराइज द वर्ड्स। So the first word is commendable. Commendable means very nice. आप लेडी देख रहे हो, she is a commendable cook. Commendable means very good or nice. हुन for example तुसी किते गए, travel कर रहे थे, ठीक है। You were traveling by car, ते in way you saw someone who was performing a dance. So you really liked that dance performance. So what would you say? Wow, what a commendable performance means very good या nice। very good या फिर nice is a very common मतलब used among the people nowadays, मतलब बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। but commendable is something very rare, मतलब people बहुत घट यूज़ करते हैं, लोग बहुत घट यूज़ करते हैं। so you can definitely use this word even in your writing section, even in your speaking, okay। So first word थोड़ा clear है, commendable, COMMENTABLE। so it is also advised that you take a pen and paper along with you and note the words। moving further, next word is delectable। delectable means tasty या फिर yummy। now tasty and yummy are quite common, but the word delectable is known among very less people, and मैं बहुत घट देखा that someone in Punjab here uses this word delectable। so delectable means tasty या फिर yummy। so the desert was very delectable। हुण एक याद रखो, एक रेगिस्तान वाला डेजर्ट होंदा है, बट ओदे विच क्या होंदा है, ओदे विच सिंगल एस होंदी है, दैट इज दिस वन। ये जो डेजर्ट होंदा है ना, ये वो वाला होंदा है जिहड़ा आपां अपनी मील तो बाद लेने, इन्हों पर कहने कुछ मीठा हो जाए, ठीक है। पंजाबी च कहिए तो मीठा। एनीवेज, सो दिस वर्ड डिलेक्टेबल कैन बी यूज्ड। माई मदर कुक्स डिलेक्टेबल मील्स, ओके। जी थोड़ी मदर आ, शी कुक्स डिलेक्टेबल मील्स। या फिर तुम डिलेक्टेबल की जगह मैं थोड़ा एक होर वर्ड भी दस सकती हूँ, दैट इज़ सम्पशुअस। मतलब बहुत ही जिमें अमीरां वाला खाना आप कह दें, बहुत ही मतलब यमी, टेस्टी, एक्सट्रावेगेंट, जा जिमें तुसी कोई मील लेने हो तो यू कैन से आई हैड a sumptuous meal this night, I had a sumptuous dinner, okay, I love sumptuous meals। या फिर delectable, delectable मतलब tasty, okay, I make delectable Maggie। मैगी तो सारे नू आती है, but the style everyone makes Maggie is different, so you can say I make Maggie in a way that it tastes very delectable। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ बहुत ज़्यादा ही वधिया ਹੁੰਦਾ। okay, next word is detrimental। हुण हार्मफुल, ठीक है। हार्मफुल वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਟੂ ਆਵਰ ਹੈਲਥ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ मतलब सीरियस सिचुएशन इन टूडेज वर्ल्ड सो बट तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ वर्ड यूज़ करोगे ऑल्दो इट्स these words are quite common ठीक है ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ बट now it is something that you need to learn मतलब ਤੁਸੀਂ harmful use ही ना करो use the word detrimental how impressive it seems like when you use it in front of someone for example तुसी स्पीकिंग दे रहे हो अपनी आइल्स सेंटर में बैठ के इफ़ यू यूज़ द वर्ड डेट्रीमेंटल हाउ गुड इट विल सीम टू ठीक है नेक्स्ट इज कम्यूट नेक्स्ट वर्ड इज कम्यूट मतलब ट्रैवलिंग ऑन अ डेली बेसिस मतलब डेली बेसिस के ऊपर ट्रैवल करना आई कैन नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर फ्रॉम दिल्ली मैं दिल्ली तो जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज एज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कम्यूट मतलब डेली बेसिस पे एक जगह तो दूसरी जगह ट्रैवल करना फॉर एग्जाम्पल के भी दो तरीके होंगे फॉर एग्जाम्पल तो सीधा है कह लो या फिर कह सकते हैं टू साइट एंड एपिटोम ਹੁਣ ਇਹ मैं एक सैपरेट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇजिंग वगैरह दैट आई विल मेक अ सैपरेट वीडियो इफ यू वांट यू कैन कमेंट ऑल्सो देखो ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ होम दिस इज़ योर स्कूल ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ रोज़ अपने घर तो स्कूल जा रहे हो स्कूल तो घर आ रहे हो दैट मीनस यू आर कम्यूटिंग व्हाट यू आर डूइंग यू आर कम्यूटिंग ठीक है तो कह रहा है मैं जॉब ऑफर दिल्ली तो एक्सैप्ट नहीं कर सकता बिकॉज कम्यूट करना मैंने बहुत औखा रोज़ आना जाना बहुत जिवें आप कह दें मैंने उत्थों रोज़ आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ठीक है नैक्सट वर्ड इज़ इवेंचुअली मीनस फाइनली ये तुसी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग सैक्शन दे विच टास्क 2 दे विच ठीक है टास्क 2 ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ हो सकता है इवेंचुअली मीनस फाइनली ਹੁਣ लाइक इवेंचुअली आफ्टर अ नंबर ऑफ एफर्ट्स आई वॉज एबल टू गैट ओवर माई फियर कहते मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए फाइनली मैं अपने जो मेरा डर से मेरा वो ओवरकम कर पाया मतलब उन तो मैं ख़त्म कर पाया वो मतलब कि जिमें कहना डर के आगे जीता है मतलब मैं एफर्ट्स किए मैं ट्राई किया कि मेरा डर जो खत्म हो जाए तो वो ख़त्म हो गया सो या फिर कह सकते मतलब I was preparing for my exam since past 4 years ठीक है I was preparing for this exam for the past 4 years ठीक है मैं थोड़ा लिख के दिखा देनी है I was preparing for this exam ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ईयर मैंशन करना तो सिंस ला दो सिंस 2006 या फिर जो तुसी ईयर्स मैंशन करने भी इन्ने सालों तो या फिर ऐ लिख दो फॉर 12 ईयर्स हूँ मैं इदा ही लिख रही हूँ ये ना कहन लग जाओ भी ये किमें होया ठीक है बट मैं तुहानूं दस रही हूँ जो ईयर मैंशन कर रहे हो तो सिंस आऊगा तो जे एग्जैक्ट ईयर्स बारे दस रहे हो तो फॉर आऊगा ऑल्दो डिफरेंट टॉपिक आई विल टीच यू इन सैपरेट वीडियो I was preparing for this exam for 12 years. Eventually, I cracked it. Finally, I cracked it. ठीक है. Next is ambience. Ambience means कि माहौल. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ what you see first मतलब ਕੀ ऑब्जर्व ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ठीक है so what you will say if you are going to a very hi-fi extravagant restaurant and you're visiting it for the first time you just enter the main hall or the reception you see the receptionist what would you say when you like it very much you will say what a commendable ambience it owns okay ambience means ke mahol ambience means surrounding environment atmosphere surrounding my room has a very cozy ambience जो मेरा कमरा थोड़ा कमरा भी दिखा देने देखो ये मेरा तो नहीं हैगा बट जिदा भी है बहुत सोहना it has a very cozy ambience कितना सोहना लग रहा है cozy मतलब कि comfortable cozy means comfortable so what a cozy ambience clear okay नेक्स्ट वर्ड जोड़ा हैगा एडवर्स एडवर्स मतलब कि डिफिकल्ट हूँ डिफिकल्ट तो सारे कह लेंगे
कदे एडवर्स आप यूज़ करिए कि ना इंप्रैसिव कि ना लाइक कैप्टिवेटिंग जा लगता, इंटरस्टिंग जा लगता, राइट। सो देखो एडवर्स मतलब कि डिफिकल्ट। आई एम हैबिचुअल, हुण हैबिचुअल की हुंदा है? हैबिचुअल मतलब कि मैनू इस चीज़ की आदत है। आई एम यूज टू, हैबिचुअल मीनस यूज टू। I am used to cooking. I am habitual of cooking। जिवें used दे नाल to आंदा उवें habitual दे नाल of आंदा, ठीक है। हुण इत्थे कह रहे I am habitual of overcoming adverse situation। भी मैनू तां आदत आ मैं औखे हालातां विचों आसानी नाल औखे हालातां नूं आसानी नाल पार कर लैना। I am habitual। हुण हैबिट तो बनिया हैबिचुअल। हैबिट मतलब आदत, इहदा तुहानूं पता ही हुंदा, पता ही होएगा आई मीन, ओके। लास्ट वर्ड इज सिचुएशन। सिचुएशन सर्कमस्टांसिस बहुत कॉमन आ, ठीक है, अमंग एवरीवन। देखो सर्कमस्टांसिस, सिचुएशंस की जगह तुसीं सर्कमस्टांसिस यूज़ कर सकते हो अपनी राइटिंग दे विच, अपनी स्पीकिंग दे विच भी यूज़ कर सकते हो, कई बार लिसनिंग दे विच भी इदां हो जाता। या फिर जब तुसीं रीडिंग करदे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दी आई स्टूडेंट्स जिहड़े रीडिंग करते समय जिन्होंने पैराग्राफ दे विचों जां फिर पैसेज दे विचों आंसर नहीं लभ रहा होंदा, इट इज़ ऑल बिकॉज कि थोनों सिनोनियम्स ही नहीं आते, थोनों पता ही नहीं है कि एक वर्ड नूं होर की कहते हैं। हुण क्वेश्चन दे विच लिखिया हुंदा है सर्कमस्टांस, बट पैराग्राफ दे विच जिथे तुसीं लभ रहे होंदे उत्थे लिखिया हुंदा सिचुएशन। हुण तुसीं नहीं लभ पाउंदे आंसर बिकॉज यू डोंट नो वट अदर वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन लिeu ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। सो दीज वर सम वर्ड्स विच आई ट्राइड टू कंपाइल इन अ सिंगल वीडियो। तो मोर पार्ट्स विल बी कमिंग, ठीक है। सीरीज आप जरूर कंटिन्यू करांगे इफ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू लाइक्ड इट। हुण देखो मेरा जो एक्सेंट वो भी खुद ब खुद चेंज हो रहा है। सो एनीवेज मैनूं दस्सिओ किद्दां लगी वीडियो, तुहाडे लई हैल्पफुल हैगी है कि नहीं, तुहानूं इदां दे होर वीडियोज़ चाहिए कि नहीं जिहदे नाल तुसीं अपनी वोकैबलरी नूं एनरिच कर सकते हो, ठीक है, भरपूर कर सकते हो। और ये थोड़े जे रिच